کیوں بھیج دیا؟ وہ مستور ہو کے دربار میں کھڑی رہی، علی امام ہو کے گھر کیوں بیٹھا رہا؟ لے آؤ اس بندے کو، میں قرآن سے جواب دوں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا حبیب اپنی بیٹیوں کو لے کے جا، اپنی بیٹیوں کو مباہلے کے میدان میں لے کے جا۔ رسول اپنے گھر سے اکیلی فاطمہ کو لے کے چلا گیا۔ فاطمہ کو لے جا کے نبی نے یہ بتا دیا جب حق کی ضرورت ہو تو غیرت کا پروردگار محمد کو بھی فاطمہ کو لے کے جانے پہ مجبور کر دیتا۔ حق کی ضرورت تھی تو نبی مباہلے میں بطول کر، جاگیر کے لیے نہیں گئی تھی، جنگ لڑنے گئی تھی نبی کی بیٹی، خطبے کی دھار کے ساتھ دشمن کے گلے کاٹ کے آئی ہے۔ میری دعا ہے قاضی صاحب، میرا مولا پاک سیدہ کی عزت کا واسطہ، مجھے جب بھی موت آئے زہرا کی وکالت کے جرم میں حق کے زہرا ممبر سے چھپائیں کیوں؟ آج حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہیں، ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ یہ ممبر نہ حکومت والوں کا کل تھا نہ آج ہے، یہ سیاست والوں کا ممبر ہی نہیں ہے۔ سیاسی پارٹی کا بدل جاتی ہے، حسین کے پرچم کے نیچے آنے والی قوم نہیں بدلتی۔ جو ہاتھ ایک دفعہ عباس کے علم کو عزت اور احترام کے ساتھ مس کر دے، وہ ہاتھ کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جاتا۔ یہ ممبر، یہ اتنی قوم، ہم نے کبھی بھی سیاست کی بات نہیں، لیکن سپریم کورٹ میں فیصلہ زیر سماعت ہے۔ پاناما لیکس، میں پورے ملک میں تنبیہ کر رہا ہوں، پاناما لیک سے گھبرانے والوں یاد رکھنا ایک امام زمانہ لیکس بھی آنے والی ہے۔ جو جوان ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ بولے، جو حالات کی وجہ سے پریشان ہے اس کا اپنا مقدر ہے، جو حالات سے ڈرا ہوا وہ گھر جائے اور چھوڑ دے علی کو۔ علی کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی ڈرے ہوئے مریض کی، جس کے سینے میں علی رہتا ہے، جس کے ذہن دماغ میں علی رہتا ہے۔ ایک پاناما لیک سے گھبرانے والا ایک امام زمانہ لیکس بھی آئے گی۔ مجھے اس بات میں بحث ہی نہیں کرنی کہ کہاں سے پیسہ آیا تھا، کس کے پاس رکھا تھا، کہاں سے کس رستے سے کہاں چلا گیا، لیکن آج حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہے۔ آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں فیصلے کا انتظار ہے، ہمیں پتہ تو چلے یہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا، کس رستے سے چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے جو پہلے غریب ہو اور بعد میں پیسہ آ جائے، پہلے غریب ہو اور بعد میں پیسہ آ جائے تو دنیا پوچھنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، یہ جاگیر کہاں سے آئی ہے، یہ گھر کہاں سے آیا ہے، یہ کوٹھیاں کہاں سے آئی ہے۔ آج حکومتیں سر جوڑ کے بیٹھی ہے، آنے تو زہرا کے بیٹے کو عدل کی کرسی میں بیٹھ کے زمانے کے بے ضمیروں سے پوچھے گا، اب بتاؤ فتح کہاں سے آیا تھا، کس نے کھایا؟ جو بول سکتا مل کے بولے لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ آج کی سب سے بڑی تسبیح دشمن زہرا پہ لعنت۔ جو آج چاہتا ہو کہ آج اس کا 70,000 حج ہو جائے، چوتھا امام بازار سے گزر رہے تھے اور ایک آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرا، اس نے اونچی آواز میں سلام کیا، امام نے دل کے اندر جواب دے کے گزرا۔ تسبیح وہیں پر روکی، امام کے قدموں پہ جا کے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کوئی ناراضگی، بادشاہ کوئی غلطی کوئی خطا، میں نے سلام کیا جواب کیوں نہیں دیا؟ میرے بادشاہ نے فرمایا تو عبادت اتنی بڑی کر رہا تھا، میں تیری عبادت میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے کہا مولا اسی عبادت کی قیمت بتا سکتا ہے، اسی عبادت کی قیمت کیا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا اگر میں تجھے حقیقت میں اسی عبادت کی قیمت بتاؤں، اگر تو ایک تسبیح دے میں تجھے اپنی پوری زندگی کی عبادت دینے کو دے۔ تجھے کیا خبر کہ دشمن زہرا پہ کھل کے نہیں کر سکتے تو دل میں تو کر سکتے۔ میں مولا کا فرمان دکھانے کے لیے دیا اور مولا نے فرمایا جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لعنت کرے ہم 14 اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ دربار میں گئی تھی تو کائنات کی ہر مزدور کا حق منوانے کے لیے گئی تھی۔
किसी भी की बेटी को भी हक ना मिलता अगर मोहम्मद की बेटी दरबार में ना जाती। दरबार में जब गई है तो दरबार में जाके बीबी ने मुकदमा लड़ा है, जंग लड़की आई है रसूल की बेटी, फतह करके आई है नबी की बेटी, चेहरों से नकाब उतार के आई है, हकीकत हुकूमत अया करके आई है। दरबार में आके बीबी खड़ी हुई, पर्दा लग गया, तख्त की तरफ से आवाज आई, क्या लेने के लिए आई है बिनते पैगंबर? मुसाहिब नहीं, फजाइल सुनिएगा बीबी, क्या लेने के लिए आई है बिनते पैगंबर? इतना कहना था, मेरी शहजादी की आवाज आई, मेरी जागीर फदक से मेरे आमल उठा के हुकूमत ने अपने सिपाही क्यों भेजे? हाकिम ने तख्त से कहा कि इसलिए हमने भेजे, हमारे पास नबी की एक हदीस है, नबी ने फरमाया कि हम जो ग्रोह अंबिया होते हैं, हम न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। इस हदीस का सहारा लेके हमने उस जागीर पे कब्जा कर लिया, क्योंकि नबी कह के गए थे कि हमारा वारिस कोई नहीं होता, लिहाजा हमारे पास हदीस थी, हमने तेरी जागीर पे कब्जा कर लिया। जो जवान बैठो बीबी का मुकदमा सुनने के लिए आए, मेरी शहजादी पर्दे के पीछे बोली, क्या कहने? पहला बार किया मेरी शहजादी ने हुकूमत के चेहरे पे। मेरी बीबी कहती, तू मुझे हदीस सुना रहा है कि मेरा पापा कह के गया था कि हम वारिस नहीं बताते, यही रुक, मुझे बता, क्या तुझे मेरे पापे ने वारिस बनाया है? जो बंदा बोल सकता है बीबी के मुकदमे पे, जो हाथ उठाइए सैयदा के मुकदमे में, बतौर गवाही दर्ज होना चाहिए। बीबी ने कहा, मुझे बोल के बता, तू हदीस पढ़ा है क्या कहने कि मेरे बाबा ने तुझे कहा था कि हम वारिस नहीं बनाते? अगर मेरा बाबा वारिस नहीं बनाता तो फिर तुझे किसने बनाया? सुभान अल्लाह। अगर तू ये कहे कि तुझे मेरे बाबा ने बनाया, फिर 3 दिन सकीफा में झगड़ा क्यों हुआ? मैं बिल्कुल वैसे ही बीबी का मुकदमा प्यार करने लगा हूं जैसे कोई हलाली वकील अपने केस में बहस कर। कोई सुने ना सुने, मेरा यकीन है इसी मजमे में अदल की कुर्सी लगी है, सहरा का बेटा बैठा, जिंदगी मौत है मेरे उस बादशाह के हाथ में जो इस मजलिस में शरीक। मेरा मालिक चाहेंगे तो यही सांस खत्म करें, मुझे फिर भी कबूल, लेकिन ये हक दुनिया तक पहुंचाओ, ये मुकदमा दुनिया तक पहुंचे। मेरे बादशाह ने कहा था कि जिंदगी में अपने बच्चों को 2 चीजें याद करवा दो, तुम्हारी कौम हमेशा जिंदा रहेगी। एक मेरी दादी का फतक वाला खुतबा याद करवाओ, एक मेरे नाने का गदीर वाला खुतबा याद करवाओ। ना अपने बच्चों को गदीर भूलने देना, न फतक भूलने देना। और जितने लोग शिया हुए हैं, जितने भी आप पूरी हिस्ट्री उठा के तज्जिया करके देख लें, जितने भी नए शिया हुए लोग हैं, वो अली की खैबर पढ़ के शिया नहीं हुए, वो खंदक से शिया नहीं हुए, वो हिजरत से शिया नहीं हुए। किसी भी नए शिया हुए बंदे के सर पे कुरान रख के पूछो क्यों शिया हुआ, अगर शिया हुआ हूं ज़हरा का हक पढ़ के। फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना, 12 इमामों की इमामत की मेहनत एक तरफ, 4 घंटे जो जंग लड़की आई है नबी की बेटी, सफीन, जमल, नहरवान, यहां अली ने तलवार निकाली थी लेकिन दुश्मन इस्लाम के लिबादे में था, यहां तलवार भी नहीं निकली, सिर्फ जुबान के साथ जंग की है मोहम्मद की। देवेगा तू बता, तुझे मेरे बाबा ने वारिस बनाया था, मैं तुझसे अपनी जागीर वापस लेने के लिए आई। उसने कहा ठीक है, जागीर देने के लिए तैयार है, कोई सबूत? बीवी ने तहरीर रसूल पेश की, मुकदमा सुनने के लिए तैयार है, रसूल की तहरीर पेश की गई, तहरीर को पढ़ा गया, बगौर मुतालिया किया गया। वो खैबर के यहूदियों के हाथ की लिखी हुई तहरीर थी कि ये एक बाग नहीं था, 40 लाख दिनार सालाना आमदनी आती थी रसूल को यहां से। इसके अंदर 7 बागात थे, 40 कुएं थे, कई चश्मे थे, बहुत बड़ी जागीर थी, ये पूरी एक पट्टी थी। ये खैबर के यहूदियों ने नबी को लिख के दी थी। यहूदियों की तहरीर
मुसलमानों के रसूल मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देते। नीचे नबी ने नोट लिखा हुआ था कि ये मेरी जाती जगीर है, मैं अपनी बेटी फातिमा को दे रहा हूं। और नबी ने उस तहरीर में लिखा था कि मैं हुक्म कुरान दे रहा हूं, क्योंकि खुदा ने कहा था आतज़िल कुर्बा, अपनी करीबी औरत को उसका हक दे। अगर बेटियां 4 होती बंदे कहते नहीं जी वो असल में बीबी का हक नहीं बनता था। इंटरनेट पे डॉक्टर तहल्लुल कादरी का बहुत लंबा एक लेक्चर पड़ा हुआ, नहीं ये हक नहीं था बीबी का। अगर हक नहीं था तो खैबर फतह हुआ है 7 हिजरी में, रसूल दुनिया से ज़ाहरी तौर पे गए 11 हिजरी में। 4 साल ये जगीर नबी के पास रही। अगर इसमें उम्मत का हक था नबी ने दिया क्यों नहीं? ज़हरा से पहले हमें इस बात का जवाब दो कि नबी ने ये हक क्यों नहीं दिया? बीबी ने कहा मैं तहरीर पेश करती हूँ। तहरीर पेश की गई, तहरीर को पढ़ा गया। सुनिएगा मुकद्दमा, तहरीर को पढ़ने के बाद हुकूमत की तरफ से ये ऐलान हुआ कि इस तहरीर पे गवाह पेश किए जाए। बीबी ने कहा मैं गवाह पेश करती हूँ। बीबी ने कहा मेरी गवाहियां नोट की जाए। मेरा पहला गवाह मेरा शौहर अमीरुल मोमिनीन, मेरे दूसरे 2 गवाह सैयद शबाब अहल जन्ना, मेरे दोनों बेटे। मेरी चौथी गवाह एक मस्तूर है जिसका नाम उम्मे ऐमन है। 4 गवाह पेश किए गए। तलागां गिरदो नवा वालों 4 गवाहियों का पेश होना था। काफी देर मुबाहसा हुआ, हुकूमत की तरफ से मशवरा हुआ। मशवरे के बाद हुकूमत की तरफ से एक फैसला आया। उस फैसले में यह लिखा था कि नबी की बेटी हम जगीर वापस करने के लिए तैयार थे। तहरीर आपकी ठीक थी लेकिन गवाहियां मुकम्मल नहीं थी। मुकदमा सुनिएगा, मुझे मजबूर ना कीजिएगा, मैं फजाइल पढ़ने रहा हूं, जिस बात पे काबू रखिएगा। तेरी गवाहियां निसाब शहादत मुकम्मल नहीं। बीबी ने कहा निसाब शहादत क्यों नहीं मुकम्मल? उन्होंने कहा निसाब शहादत इसलिए नहीं मुकम्मल कि आपने पहली गवाही दी है अपने शौहर की, तो अली शौहर होने की वजह से इस जगीर में हिस्सेदार है। जो मालक हो वो गवाही नहीं दे सकता, गवाही बाहर से आनी चाहिए थी। दूसरे 2 गवाह पेश किए अपने अपने बेटे। आपके बेटों का भी इस जगीर में हक है, लिहाजा वो भी मालक हो। चौथी गवाही हम कबूल करने के लिए तैयार थे, लेकिन क्योंकि तेरे बाबा की शरीयत है कि अगर औरत मर्द के मुकाबले पे गवाही देगी तो 2 औरतों की गवाही एक मर्द के मुकाबले पे मानी जाएगी। लिहाजा औरत एक थी, इसके साथ दूसरी औरत कोई नहीं थी, लिहाजा निसाब शहादत मुकम्मल नहीं। तहरीर कबूल कर सकते थे अगर गवाहियां मुकम्मल होती। क्या कहने नबी की बेटी, नबी ने तहरीर वापस ले ली। नबी की बेटी ने गवाहियां नहीं बदली। गवाहियां नहीं, रसूल बीबी गवाहियां बदल सकती थी। जवाहर सादिक साहब बीबी के पास गवाह थे, इन्होंने मौला अली की गवाही को जुटलाया, बीबी जनाब सलमान को खड़ा कर देती, हजरत अबू जर को खड़ा कर देती, जनाब मिकदाद को खड़ा कर देती। बीबी ने मुकदमा वापस ले लिया, गवाह नहीं बदले। अब गवाह क्यों नहीं बदले थे ये मुकदमा सुनना। गवाह बीबी ने इसलिए नहीं बदले कि कुरान के एतबार से फिक्र का कानून है, अगर कोई किसी मोमिन को झूठा कहे तो वो बन जाता है फासिक। बहस करो हमसे, बुलाओ हमें सुप्रीम कोर्ट में, हम तुम्हें ज़हरा का हक मनवा के आए। जो किसी मोमिन को झूठा कहे, कुरान कहता है वो बनता है फासिक। फासिक नमाज पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता। फासिक चांद की शहादत नहीं दे सकता। फासिक निकाह में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक तलाक के सीगों में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक आदल नहीं रहता। अगर कोई किसी सच्चे मोमिन को झूठा कहे तो कुरान की नस से वो बनता है फासिक। और माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, अगर कोई कुरान को झूठा कह दे तो वो फासिक नहीं बनता, कुरान कहता वो बन जाता है काफिर। फिर उससे दोबारा कलमा पढ़ने की जरूरत होती। क्या कहने, नबी की बेटी तो इतनी बड़ी जंग लड़की आई है कि तेरी मसलहत जमाने की समझ में नहीं आ गई। बीबी ने गवाहियां पेश करके गवाहियां
वापस है। बीबी ने कहा तूने कुरान को झुठला दिया, मैं गवाहियां वापस लेके जा रही हूँ और मैं तारीख में लिखवा के जा रही हूँ कि मैं तुम्हें फासिक नहीं करने आई थी, मैं तुम्हें काफिर करने आई। कुफ्र के झरोखों में फेंक गई। मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारे दीन पे पलटाने के लिए आई थी। बीबी ने कहा मुकदमा वापस। वहीं पे खड़े बीबी ने दूसरा दावा दायर कर दिया। बीबी ने कहा ये दावा वापस। अगला दावा, हाकिम है ना, बेटी बन के बाप का हक लेने आई हूं। मालकन वाला दावा वापस ले लिया। अब एक बेटी है, उसके बाबे क्या एक जगीर का टुकड़ा है। बतौर हाकिम क्या फैसला करेगा कि वो बेटी को मिलनी चाहिए या नहीं? उसने कहा बेटी को तो मिलनी चाहिए क्योंकि मजबूरी थी। अगर कहते कि बेटी का हक नहीं होता तो फिर कई अपने हक भी रखवाने पड़ते। आप समझते हैं कि खतीब आजाद होकर तकरीर करता है, हम पिंजरे में बंद होकर अपनी कौम की वकालत करते हैं। बीबी ने कहा बेटी हूं, बाप का हक लेने के लिए आई हूं। बड़ा लंबा मजमून यहीं पे खत्म करके अपने ब्रादरम काजी वसीम बास को टाइम दो। उन्होंने कहा अच्छा। बीबी ने कहा मैं तुमसे अपने बाप का हक लेने आई हूं। उन्होंने कहा बीबी बार बार किस बात पे बहस हो रही है, जब हमने कह दिया कि हमारे पास आपके बाबा की हदीस है और हदीस में साफ वाज़े लिखा हुआ है कि हम गरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। हम हदीस को देखें या आपके दावे को देखें, हम हदीस को देखें या आपके दावे को देखें। नबी की बेटी ने देखा अच्छा तू हदीस सुनाता है, अगर तू कहे तो मैं तुझे कुरान की आयत सुनाऊं, मैं तुझे कुरान की आयत सुनाऊं। उसने कहा कौन सी कुरान की आयत? नबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वारिस सुलेमान दाऊद, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया था। अल्लाह कुरान में कहता है कि नबियों का वारिस होता है और तुम कहता मेरे पास हदीस है, वारिस कोई नहीं होता। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं दूसरी आयत पढ़ देती हूँ, वाले रजाला नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन व अक़रबून, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाते हैं उसमें मर्दों का हिस्सा होता है। कुरान कहता है हिस्सा होता है, तू कहता वारिस कोई नहीं होता। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं तीसरी आयत पढ़ देती हूँ, वाले निसा नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन व अक़रबून, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें बेटी का हिस्सा होता है। कुरान सूरह निसा में कहता है बेटी हिस्सा रखती है, तू कहता हदीस है। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं चौथी आयत पढ़ देती हूँ, हमने याकूब की औलाद को उसका वारिस बनाया था। कुरान कहता है याकूब की औलाद उसकी वारिस है, तू कहता मेरे पास हदीस है। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं पांचवी आयत पढ़ देती हूँ। बात बदल बदल के हाकिम एक हदीस पढ़ता रहा, बीबी बदल बदल के कुरान की आयतें पढ़ती रही। कुरान में पटले किया, मुझे काजी के अलम की कसम है, हाकिम एक हदीस पढ़ता रहा। बीबी ने 40 आयतें दरबार में खड़ी होकर पढ़ी। जब 40 आयतें पढ़ी हाकिम के चेहरे पे मौत का पसीना आ गया। उसने कहा बीबी मैं हदीस पढ़ता हूँ, जवाब आयत में क्यों देती है? अगर तेरे पास भी हदीस है तो हदीस का जवाब हदीस में ले गया। बीबी ने कहा बस चुप हो जा, मैं इतना सुनना चाहती थी, तू वही है जिसे मेरे बाप ने कहा था आज तुझे हदीस लिख दो, आज तुझे हदीस लिख दो। तूने कहा था हमें कुरान काफी